Hello everyone. Welcome to today's discussion on green bonds to masala bonds. हिंदी विषय में बोले ग्रीन बॉन्ड से मसाला बॉन्ड तक। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए जानना आवश्यक क्यों है? दिस टॉपिक्स बिलोंग्स टू इकोनॉमी। Sovereign green bonds had struggled to gain traction due to muted investor demand. But what are the sovereign green bonds? What are the other similar bonds? How is it connected to SDGs? निवेशकों की कम मांग के कारण सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को लोकप्रियता हासिल करने में संघर्ष करना पड़ा। लेकिन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या है, अन्य सामान इसी के समान बॉन्ड क्या है, यह एसडीजी से कैसे जुड़ा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। यू हैव रीड अबाउट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, but are you aware of sovereign green bonds and blue bonds? UPSC has asked questions on bond and yields. In 2016, a question was asked about masala bonds. Also, as the world moves forward to achieve the sustainable development goals, these bonds are becoming increasingly important in this context. Why in the news in this topic? क्यों चर्चा में रहा है, ये भी आप जाने। The demand of sovereign green bonds in India has received a live response from the investors. The two new sovereign green bonds worth rupees 10,000 crore auctioned by the Reserve Bank of India in November and January face muted response from the investors as bonds value at rupees 7,443 crore remained unsold. This came despite a rule change allowing NRIs and foreign portfolio investors to participate without restrictions. अर्थात ये समझिए कि भारत में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की मांग को इन्वेस्टर से बहुत कम प्रतिक्रिया मिली है। नवंबर और जनवरी में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीलाम किए गए 10,000 करोड़ रुपए के दो नए एसजीआरबी की निवेशकों से कम प्रतिक्रिया मिली, क्योंकि 7,443 करोड़ रुपए मूल्य के बॉन्ड नहीं बिके। और ये तब हुआ जब नियमों में बदलाव किया गया, जिसमें एनआरआई और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को बिना किसी प्रतिबंध के भाग लेने की अनुमति दी गई, इसलिए चर्चा में रहा। ए बॉन्ड इज एन इंस्ट्रूमेंट टू बोरो मनी। ए बॉन्ड कुड बी फ्लोटेड इश्यूड बाय कंट्रीज गवर्नमेंट और बाय ए कंपनी टू रेज फंड्स। सिंस गवर्नमेंट बॉन्ड्स referred to as a G-Sets in India, treasury in the US and gifts in the UK, come with the sovereign guarantee, they are considered one of the safest investments. As a result, they also give the lowest returns on investment. यानी आप समझिए कि बॉन्ड पैसे उधार लेने का एक साधन है। बॉन्ड किसी देश की सरकार या किसी कंपनी द्वारा फंड जुटाने के लिए जारी किया जा सकता है। चूंकि सरकारी बॉन्ड भारत में जी से, अमेरिका में ट्रेजरी और यूके में गिल्ट के रूप में संदर्भित संप्रभु की गारंटी के साथ आते हैं, इसीलिए उन्हें सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता है। परिणाम स्वरूप वे निवेश पर सबसे कम रिटर्न भी देते हैं। The yield of a bond is the effective rate of return that it earns, but the rate of returns is not fixed.
It changes with the price of the bond. Understand this through an example. Suppose the face value of a 10 years G sectors is rupees 100 and its coupon payment is rupees 5. Buyers of this bond will give the government rupees 100, the face value. In return, the government will pay them rupees 5, the coupon payment, every year for the next 10 years, and will pay back their rupees 100 at the end of the tenure. In this case, the bonds yield or effective rate of interest is 5%. आप यह समझिए कि किसी बॉन्ड का प्रतिफल उस पर अर्जित रिटर्न की प्रभावी दर है, लेकिन रिटर्न की दर तय नहीं है, यह बॉन्ड की कीमत के साथ बदलता रहता है। उदाहरण से समझिए आप कि जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 10 साल के जी सेक का अंकित मूल्य 100 रुपए है और इसका कूपन भुगतान 5 रुपए है। इस बॉन्ड के खरीदार सरकार को 100 रुपए देंगे और बदले में सरकार उन्हें अगले 10 वर्षों तक हर साल 5 रुपए कूपन भुगतान करेगी और अवधि के अंत में उनके 100 रुपए वापस कर देगी और इस मामले में बॉन्ड की प्राप्ति या प्रभावी ब्याज दर 5% है। Sovereign green bonds are those that are issued by the sovereign entities like a government of India, which the formulated a framework of issuing such bonds in 2022. The framework defines green projects as those that encourage energy efficiency in resource utilization, reduce carbon emission, promote climate resilience and improve natural ecosystems. अर्थात सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड वे बॉन्ड है जो भारत सरकार जैसी संप्रभु संस्थाओं द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसने वर्ष 2022 में ऐसे बॉन्ड जारी करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की। रूपरेखा में ग्रीन प्रोजेक्ट्स को उन परियोजनाओं के रूप में डिफाइन किया गया जो संसाधन उपयोग में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करती है, कार्बन उत्सर्जन को कम करती है, जलवायु लचीलेपन को बढ़ावा देती है तथा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में सुधार करती है। The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has proposed the concept of blue bonds in its paper titled Consultation Paper on Green and Blue Bonds as a Mode of Sustainable Finance. According to SEBI, India has tremendous scope for the deployment of blue bonds in various aspects of the blue economy. अर्थात ये समझिए कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने अपने पेपर सस्टेनेबल फाइनेंस के एक मोड के रूप में ग्रीन और ब्लू बॉन्ड पर परामर्श पत्र में ब्लू बॉन्ड की अवधारणा का प्रस्ताव रखा है। सेबी ने कहा कि भारत में ब्लू इकोनॉमी के विभिन्न पहलुओं में ब्लू बॉन्ड के इस्तेमाल की अपार संभावनाएं। ब्लू इकोनॉमी डिफाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक एज द सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, improved livelihoods and jobs while preserving the health of the ocean ecosystems. The European Commission constructs it as all economic activities related to ocean, seas and coasts. अर्थात विश्व बैंक द्वारा ब्लू इकोनॉमी को महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए महासागर संसाधनों का सतत उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है। यूरोपीय आयोग इसे महासागरों, समुद्रों, तटों से संबंधित सभी आर्थिक गतिविधियों के रूप में भी परिभाषित करता है। मसाला बॉन्ड्स आर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। द फंड्स वुड बी रेज्ड फ्रॉम द ओवरसीज मार्केट इन इंडियन रुपीज। According to RBI, any corporate body corporate and Indian bank is eligible to issue rupee denominated bonds overseas. अर्थात मसाला बॉन्ड रुपए में मूल वर्गित बॉन्ड होते हैं। मतलब यह हुआ कि विदेशी मार्केट से भारतीय रुपए में धन जुटाया जाएगा
कोई भी कारपोरेट निकाय, कारपोरेट और भारतीय बैंक विदेश में रुपए में मूल्य वर्गित बॉन्ड जारी करने के लिए पात्र है। According to the Organization of Economic Cooperation and Development, social impact bonds are the type of social impact investment and are prepared for success instrument as the returns on investment of a social impact bond depends on the outcome of the program that is financed. This feature allows for tracking the progress of the outcome, thus ensuring transparency of investors. अर्थात आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के अनुसार सामाजिक प्रभाव बॉन्ड एक प्रकार का सामाजिक प्रभाव निवेश है और यह एक सफलता के लिए भुगतान साधन है, क्योंकि सामाजिक प्रभाव बॉन्ड के निवेश पर रिटर्न उस कार्यक्रम के परिणाम पर डिपेंड करती है जिसे वित्त पोषित किया जाता है। यह सुविधा परिणाम की प्रगति को ट्रैक करने की अनुमति देती है, जिससे निवेशकों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। According to OECD, sustainability linked bonds or bonds for which the financial and or structural characteristics can vary depending on whether the issuer achieved predefined sustainability or environmental, social and governance objectives. It is a forward-looking performance-based instruments where issuers commit to future improvements in sustainability outcomes within a determined period. अर्थात OECD के अनुसार स्थिरता लिंक्ड बॉन्ड ऐसे बॉन्ड हैं जिनके लिए वित्तीय या संरचनात्मक विशेषताएं इस आधार पर भिन्न हो सकती हैं कि जारीकर्ता ने पूर्व निर्धारित स्थिरता या पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन उद्देश्यों को प्राप्त किया है या नहीं। यह एक दूरदर्शी प्रदर्शन आधारित साधन है जहां जारीकर्ता एक निर्धारित अवधि के भीतर स्थिरता परिणामों में भविष्य के सुधारों के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। मैं शॉर्ट में आपके सामने सरल भाषा में समझाने का प्रयास करने जा रहा हूं। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, जो कि उल्लेख हो रहा है बार बार, ये क्या है? ये बॉन्ड राष्ट्रीय सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं, यानी नेशनल गवर्नमेंट्स द्वारा। इसका उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन और जलवायु लचीलापन बढ़ाना। इन बॉन्ड से प्राप्त धन का उपयोग केवल हरित परियोजनाओं के लिए किया जाता है। मसाला बॉन्ड क्या है? ये बॉन्ड विदेशी बाजारों में जारी किए जाते हैं, लेकिन भारतीय रुपए में दर्शाए जाते हैं। समझ रहे हैं? इसका मकसद यह है कि भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना। इन बॉन्ड से प्राप्त धन का उपयोग विविध उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे, देखिए, एक और शब्द उल्लेख हो, ब्लू इकोनॉमी। हिंदी में हम इसे बोलते हैं नीली अर्थव्यवस्था। समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग करने की एक रणनीति है। इसका लक्ष्य समुद्री संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक विकास, रोजगार और आजीविका में सुधार करना है, जबकि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाए बिना। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ब्लू इकोनॉमी। द ब्लू इकोनॉमी आप इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। यूजेस स्मार्ट शिपिंग टू लेसन द इंपैक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट। Blue economy is inclusive and improves the lives of all. Blue economy is based on sustainable fisheries, harnesses renewable energy, takes action against illegal fishing, tackles marine litter and oceans pollution, protects coastal communities from the impacts of climate, and blue economy creates jobs, reduces poverty and ends hunger. It conserves marine life and oceans. तो ये देखिए ब्लू इकोनॉमी जो मैं बताने जा रहा था, पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। हमारे देश में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। उनमें से कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मार्मागांव, मैंगलोर, कोच्चि, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एन्नोर, वीओ चिदम्बरम नार।
तो ये देखिए, ये देश के 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। अब यहां पर देखिए हम बात करेंगे सतत विकास लक्ष्य की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। द यूनियन कैबिनेट हैज रिफर्म that it is on track to meet its sustainable development goals well ahead of the 2030 deadline. The main objective of sovereign green bonds, blue bonds and social impact bonds and other bonds is to meet the SDG targets. यानी कैबिनेट केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुष्टि की कि वर्ष 2030 की समय सीमा से पहले अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, ब्लू बॉन्ड, सोशल इंपैक्ट बॉन्ड और अन्य बॉन्ड का मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना है। Here are some of the important sustainable development goals. Goal 7, ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. यानी सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। गोल 11, मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ, रेसिलेंट एंड सस्टेनेबल। यानी शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाएं। गोल 13, टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इंपैक्ट। अर्थात जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। गोल 14, कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशंस, सीज एंड मैरीन रिसोर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग करना। गोल 17, स्ट्रेंथ the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development। अर्थात कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना तथा सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना। अब हम बात करेंगे, देखिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। विद रेफरेंस to IFC masala bonds sometimes seen in the news, which of the statements given below is are correct। ये देखिए सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन which offers these bonds is an arm of the World Bank। Second is they are the rupee denominated bonds and are a source of debt financing for the public and private sector। Select the correct answer using the code। तो इस कोड के माध्यम से ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आप इस तरह से आंसर बता सकते हैं। आज इतना ही, थैंक यू।